Good morning, children. Myself, Karunesh Bhadoria. Children, in previous video, I have taken some numerical part related to resistance. Yes, the combination of resistance. I have explained two type the combination of resistance. One was series combination and second was parallel combination. Few numericals I have done, but today I am taking some extra numericals, extra levels numericals. Okay, so chapter number 3, current, electricity, and topic numericals based on resistance. These resistance are connected in different combination. They may be in series or in parallel combination. So in today's videos I am taking first question. Question number 1. Suppose these two resistances, this is A point and this is B point. Suppose resistance R and R. This is small r. Find equivalent resistance between points A and B. This is the question. We have to find the equivalence resistance if resistances are connected according to this figure. There are total 5 resistances R, and a small r. These 5 resistances are connected in different ways. Few are in series or in parallel, maybe parallel combination. So we have to find the equivalent between the point A and B. What will be the equivalence resistance of this figure? So here I am taking a smart method, mirror symmetry method. क्या नाम इसका है? Mirror symmetry method. Look here, mirror symmetry method. Okay, इस method को आप देखिए. Right, in this method we will put a mirror like this, assuming mirror. This is the question. इसको रफ कर देते हैं. This is assuming mirror. Assume a mirror. Okay, ये मिरर आपने मिड में इसको प्लेस किया. रेजिस्टेंस कुछ चेंज कर देते हैं. चलो, दिस इज़ 2R, दिस इज़ 2R, R. ओके, अब अगर यहाँ मिरर आपका है इस तरह से मिड में, इसकी इमेज इधर बनेगी, इस R की इमेज इधर बनेगी. मिरर में इमेज बनती है. सो इफ वी टेक आ मिरर अलोंग दिस लाइन, तो image of this 2R will be this 2R and this R will be this R. जैसा इधर ऑब्जेक्ट है इस तरफ उसकी इमेज बनेगी. तो अगर कहीं किसी सिचुएशन में ऐसा आ जाए मिरर से उसकी इमेजेस आपको दिख रही हो, तो बीच वाला जो कनेक्शन है स्मॉल r का, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी. क्लियर? अगर इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, यहाँ मिरर रखने से, तो बीच वाले में फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा. राइट, अगर इसमें फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, फ्लो ऑफ चार्ज अगर इसमें नहीं है, तो इट मीन्स अब ये 4 रेजिस्टेंसेस यहाँ से करंट आती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती है. सपोज दिस इज़ I1, दिस इज़ I2. यहाँ से कंटिन्यू I1 करंट फ्लो होगी यहाँ तक, एंड I2 करंट, I1 I2 मिलकर के वापस I कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, and these two resistances are in series combination, and
the resultant of these two resistances and resultant of these two resistances will be in parallel combination, क्योंकि बीच में करंट का फ्लो नहीं होगा, राइट। तो ये कितना इजी हो जाएगा अगर हम यहाँ पे मिरर को रख करके एज्यूम करें कि क्या इधर की इमेज इधर बन रही है। अगर इमेज नहीं बनती, इन दैट केस सम करंट ऑल्सो विल फ्लो अलोंग दिस ब्रांच, तो यहाँ से करंट का फ्लो होता, तो आप इसको कंसीडर करते, राइट। तो जो भी क्वेश्चन जिसमें इस तरह की मिरर इमेज बनती है तो मिड वाले में करंट का फ्लो नहीं होता है। और अब आप इसको 2R एंड 2R का सीरीज कॉम्बिनेशन में 2R एंड 2R आर connected in series combination, इसलिए इनका रिजल्टेंट, सो सपोज दिस इज इक्विवेलेंट R डैश इन सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज इक्विवेलेंट, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सो दिस विल बी 2R plus 2R, this is 4R. Similarly, R and R, these two resistances are also in series combination. R and R are also in series combination. और अगर ये सीरीज में है तो R रिजल्टेंट R डबल डैश, this is equals to R plus R, this will be 2R. Now the resultant of these two resistances will be 4R and equivalent of these two will be 2R. These two resistances, this and this, आप इसको अलग से अगर देखना चाहें तो ऐसे भी डायग्राम बन जाएगा। अब A point and 2R दिस, इसको B, इन दोनों का रिजल्टेंट 4R, इन दोनों का रिजल्टेंट 2R एंड दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही लीजिए आप, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन of 4R and 2R. Parallel में 1 upon R equals to 1 upon R1 plus, so this is 1 upon R equivalent equals to 1 by 4R plus 1 by 2R, 1 by R equivalent equal to, what will be LCM? 4R, this is LCM, 1 plus 2, कितना हो जाएगा 3 by 4R। आपको क्या पता करना है, R इक्विवेलेंस, सो R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 4 by 3 ऑफ, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये सिमेट्रिक, मिरर सिमेट्रिक है। मिरर सिमेट्री से आपको ये पता चल जाएगा कि देयर विल बी नो करंट, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन, these two are also series combination, then they will be in parallel combination. So एक बार सीरीज में फॉर्मूला निकाला, इसका आंसर 4R, इन दोनों का 2R, और फिर दोनों को पैरेलल में करके 4R by 3, दिस इज द कंप्लीट आंसर। ओके, नाउ नोट करें इसको। नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, सेकेंड। Question number 2. Question number 2. Suppose this is question number 2. R, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है। उसी तरह का क्वेश्चन है ये। पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। R, 2R, R
and 2R. This is small r. यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पे मिरर रखते हैं ऐसे तो ये इसकी इमेज नहीं बन रही, यहाँ R है या 2R है, तो मिरर से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फोल्डिंग मैथड, दिस इज अनदर मैथड, फोल्डिंग NING, फोल्डिंग मैथड। इस मैथड में क्या करना होगा, देखिए इसको फोल्ड कीजिए AB के अलोंग इसको फोल्ड कीजिए तो आप देखेंगे कि सिमेट्री हो जाएगा R एंड R, 2R एंड 2R, है ना। फोल्ड जैसे करेंगे ये रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये इसके सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा फोल्ड करने से सिमेट्री बनती है, फोल्ड करने से, वहाँ मिरर रखने से सिमेट्री बन रही थी, यहाँ हमने मिरर रख दी थी तो उसमें ये सिमेट्री इसके आ रही थी, यहाँ इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी सिमेट्री ये बनेगी, है ना। तो इसका नाम है फोल्डिंग मेथड। अगर फोल्ड करने से सिमेट्री बनती है, इन दैट केस भी मिडिल वाले में करंट का फ्लो नहीं होगा, आप इस रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगी नहीं, काउंटेड होगा नहीं ये। केवल ये 4 रेजिस्टेंसेस 1, 2, 3 एंड 4, इनका कॉम्बिनेशन आपको देखना है एंड द इक्विवेलेंट ऑफ दीज 4 रेजिस्टेंसेस यू हैव टू फाइंड, राइट। तो यहाँ पर मिड वाले में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, देयर विल बी नो flow of current through resistance R. No flow of current through resistance R. So this R and 2R. अब देखिए यहाँ से करंट का वापस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सपोज इट इज़ I1, दिस इज़ I1, I2। I1 करंट यहाँ से फ्लो होते हो, यहाँ I1 और ये I2, क्योंकि इसमें ऊपर तो करंट जानी नहीं है, बीच में यहाँ से जानी नहीं है, यहाँ से भी इधर करंट नहीं आ रही है, तो पूरी की पूरी करंट I1 इधर और I2 इधर, यहाँ कंबाइंड होकर के वापस I में कन्वर्ट। एंट्रिंग करंट एंड एग्जिस्टिंग करंट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ बीच में करंट का फ्लो नहीं है। नाउ R and 2R, these two resistances in which combination? These two resistances are in series combination. So first of all, in series combination, equivalent of R and 2R. In series combination of R and 2R, ये suppose this is R dash, and in series combination it will be R is equals to R1 plus R2 plus R3. So this will be R plus 2R, कितना हो जाएगा, R dash equals to 3, ऊपर वाली ब्रांच में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस R dash equals to 3R. सिमिलरली इन दिस ब्रांच, नीचे वाली ब्रांच में भी इतना ही होगा, सेम रेजिस्टेंस है। सिमिलरली in lower branch equivalence R double dash equals to again 3, ये भी 3R, ये भी 3R, and these two resistances will be in parallel combination. आप उसको यहाँ देख सकते हैं, B A, equivalence of R and 2R, this is 3R, equivalence of R and नीचे वाली ब्रांच में this is 3R. Now these two resistances are in parallel combination. So in
पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंस, पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंस इक्वल्स टू कितना 1/3r प्लस 1/3r. LCM is same, so this will be 2/3r. Now r equivalence कितना होगा 3/2 of, this is the final answer. Question number 2, right? नोट करें इस क्वेश्चन को. Yes, have you noted? इसमें फोल्डिंग में ये तो है, ये एक और इसमें तरीका है इसका फोल्डिंग का. आप ऐसे भी इसका फाइनल आंसर दे सकते थे कि जब भी फोल्डिंग का आ जाए क्वेश्चन तो जो सिमेट्री है, जैसे इन दोनों की सिमेट्री ये है, तो आप इसमें इसे रफ कर सकते हैं और इसका हाफ कर दीजिए, इसका भी हाफ कर दीजिए और उसके बाद इन दोनों को सीरीज़ में प्लस कर दीजिए. सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया. ये कंपटीशन में करना आपको, ताकि आपका आंसर जल्दी आपको मिल सके. सो इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन r इक्विवेलेंस इक्वल्स टू r/2 प्लस ये कट जाएगा, क्या बचेगा r, दिस विल बी 3r/2. सेम आंसर आपका मिल जाएगा. तो जो भी सिमेट्रिक फोल्डिंग वाले क्वेश्चन अगर हों, फोल्डिंग मेथड से हो रहे हों, तो उसमें शॉर्टकट में आंसर निकालने का एक तरीका ये भी है कि जो सिमेट्री है एक पोर्शन को आप रिलेट हटा दें, ऊपर वाले में जस्ट हाफ करके और फिर जो कॉम्बिनेशन है उससे आप इसका इक्विवेलेंट जल्दी कम टाइम में निकाल सकते हैं. कंपटीशन में आप इसे काम में ले सकते हैं, बट बोर्ड एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा. राइट नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नंबर 3 क्वेश्चन. सपोज this is one resistance is here, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक इस ब्रांच में, एक इस ब्रांच में है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है. ओके, द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इज R. Find the equivalence between the point A and B. Same question. Find equivalence, R equivalence between A and B. Right? A और B. This is point A, this is point B. ये इक्विवेलेंस आपको पता करना है. अब देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. देखिए करंट यहाँ से फ्लो हो रही है. At this point current is distributed. Suppose in this branch here current is I, in this branch suppose it is I1 and in this branch suppose it is I2. करंट जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अब यहाँ पे आके देखिए करंट कनेक्टेड है तो इधर भी जा सकती है, इधर भी, इधर भी, ऐसे यहाँ से भी है. तो ये कॉम्प्लिकेशन तो है इसके अंदर. अगर हम मेथड यूज़ करें तो ये कॉम्प्लिकेशन आपका ख़त्म हो जाएगा और क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा. सो इसमें भी आप मिरर सिमेट्री यूज़ करें. मिरर सिमेट्री से अगर हम करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. सो यूजिंग मिरर सिमेट्री. ओके, सिमेट्री जैसा हमने बताया था मिरर सिमेट्री में
इसके अलोंग एक मिरर एज्यूम कीजिए, एज्यूम आ मिरर, ओके। यहाँ एक मिरर आपने एज्यूम किया। अब देखिए ये मिरर से इस साइड से और इस साइड की सिमेट्री सेम होनी चाहिए, इधर वालों का ये इमेज इधर बननी चाहिए। अगर आपने यहाँ से मिरर ऐसे लिया है मिरर, तो इसकी इमेज ये बनेगी, इसकी इमेज ये बनेगी, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये बनेगी। फिर से देखें एक बार, बीच में अगर मिरर आप रखते हैं, इस रेजिस्टेंस की इमेज ये बनेगी, इस रेजिस्टेंस की इमेज ये बनेगी, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये। बीच में अगर मिरर आप रखते हैं तो यहाँ मिरर सिमेट्री हो रही है। और मिरर सिमेट्री में आप करंट का फ्लो करके देखें, फिर ये डायग्राम थोड़ा मॉडिफाइड डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये क्लियर हो पाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ से करंट I1 इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड अब अगर इसकी ये सिमेट्री है तो इसका मतलब है कि इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए सेम करंट। सिमेट्री का मतलब सेम करंट I1, सिमेट्री है I1 करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच और ये इसकी सिमेट्री है, तो इसमें भी I1 करंट फ्लो होगी, क्लियर। अब बात यहाँ आती है कि अगर I1 करंट यहाँ फ्लो होगी तो इस पॉइंट पर जो करंट आ रही थी डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो यहाँ I1 करंट नहीं आ सकती है। इसका मतलब है कि ऊपर ब्रांच में करंट ये वाली ऊपर नहीं जा रही है। अगर ऊपर जा रही होती तो यहाँ I1 करंट आपको नहीं मिलेगी, क्लियर, क्योंकि ये इसके सिमेट्री है। यहाँ देखिए इस ब्रांच में I2 करंट, तो इसमें भी I2 होनी चाहिए। दिस इज़ I2 करंट, दिस इज़ I2, क्लियर। यहाँ आते हैं, I2 करंट यहाँ तक आती है, यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ करंट इसमें आएगी, कुछ ऊपर जाएगी। I2 ही डिवाइड होगी, सपोज वन पार्ट इज़ I3, another part is I4, I3 plus I4, I3 plus I4 is equals to I2. I2 is divided in two part, one part is I3, second part is I4. So the sum of I3 and I4 will be equals to I2, है ना। तो इस I2 का कुछ पार्ट यहाँ से आएगा और कुछ पार्ट ऊपर जाएगा। ऊपर वाला ये यहाँ से I2 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 यहाँ तक I2 करंट आ गई, दिस इज़ I2, क्लियर। अब आते हैं यहाँ से I3, यहाँ से करंट ऊपर जाएगी, इधर अगर आती तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें तो आना नहीं है, तो ये करंट यहाँ से होकर वापस इधर जाएगी, I3 और यहाँ पे आके I3। अब I3 एंड I4, सॉरी ये दिस इज़ I4 है, I3 एंड I4 वापस कंबाइंड होगी और I2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I2। तो यहाँ पे भी I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I2। जो एंट्रिंग करंट है वही करंट बाहर आ रही है। तो यहाँ एक बात क्लियर हो रही है कि यहाँ कनेक्शन नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब इस डायग्राम को आप इस तरह से बनाते हैं। देखना, A, B, यस, इस तरीके से अगर करते हैं आप, R रेजिस्टेंस, दिस इज R रेजिस्टेंस। अब देखिए आप यहाँ से बीच में सिमेट्री थी, I करंट फ्रॉम पॉइंट A, करंट इज डिवाइडेड हियर, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। अब I1 करंट, I1 यहाँ I1, क्लियर, देयर इज नो कनेक्शन।
सो I1 करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रही है। यहाँ से देखते हैं I2 करंट यहाँ डिवाइड हो रही है, दिस इज़ I, क्या लिया था आपने, I3, और ऊपर वाली ब्रांच में I4, दिस इज़ I4। अब I3 करंट यहाँ से होती हुई यहाँ तक, I3 करंट, I4 यहाँ से होती हुई यहाँ I4, I3 एंड I4 दोनों कंबाइंड होकर के वापस I2, क्योंकि यहाँ I2 ही डिवाइड हो रही थी, दिस इज I2 ही डिवाइड हो रही थी I3 एंड I4 में। सो दिस I2 विल बी इक्वल्स टू I3 प्लस I4, दिस इज यस देखा आपने, ये इस तरीके से करंट का फ्लो मैंने दिखाया। I करंट यहाँ से फ्लो हो रही थी, I1 I2 कन्वर्ट हुई, यहाँ भी I1 I2 मैंने कन्वर्ट की। I2 करंट इस पूरी ब्रांच में I1 करंट आ रही पूरी ब्रांच में। I2 करंट यहाँ से डिवाइड होगी I3 I4 में, I3 यहाँ से होती हुई I3 और I4 यहाँ से होकर के इसमें ऐड हो जाएगी और ये I2 में। तो इस तरीके से ये आपका मॉडिफाइड डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए, these two resistances are in series combination, these two resistances again series combination, then इसका रिजल्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन चारों का एक बन जाएगा। फिर 1 2 3 1 2 3 ये तीनों इसमें आएंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, उसके बाद ये दोनों सीरीज़ में, फिर दोनों पैरेलल में, राइट। तो चलें इसको देखते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में R एंड R का, in series combination of R and R dash equals to, सीरीज में क्या होता है R प्लस R dash equals to 2R, सीरीज में ऊपर इन दोनों का भी सेम होगा, है ना। अब 2R ये और 2R ये, इसको एक अलग ब्रांच और बना देते हैं, एक डायग्राम इसका और देख लेते हैं। देखिए, इसको चलिए ऐसे ही बनाते हैं। दिस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस इसमें यहाँ दे दो। अब यहाँ से इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बना दीजिए, ये कितना है 2R, और एक यहाँ से भी 2R, दिस इज़ 2R, राइट, A एंड B। 2R और 2R पैरेलल में है तो इसका हो जाएगा R, ठीक है। चलिए, अब R और ये R, तो एक और बना देते हैं। A पॉइंट, यहाँ से एक ब्रांच में ये, दूसरी ब्रांच में ये, तो ऊपर की ब्रांच में R ये वाला, इन दोनों का दिस इज़ अगेन R, फिर ये दिस इज़ R, और नीचे वाली ब्रांच में 1 B पॉइंट। देखिए यहाँ पे देखिए 2R एंड 2R दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका R हो जाएगा R एंड R, 1 2 3, नीचे वाले दोनों R ये, तो इसका ये भी डायग्राम बनेगा जाके। अब इन तीनों का सीरीज़ में कितना हो जाएगा 3R, और इन दोनों का सीरीज़ में 2R। सो फाइनली इफ वी टॉक, एक डायग्राम और यहाँ लेते हैं। A, इन तीनों का एक साथ कर दीजिए, और नीचे वाले दोनों का एक साथ, दिस इज़ B। ये कितना हो जाएगा R 3R, और ये R 2R। तो फाइनली जो है R इक्विवेलेंट ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो 1 बाई R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1 बाई 3R प्लस 1 बाई 2R। एलसीएम विल बी 3 2 जा 6,
3 2 जा 2 3 जा, कितना हो जाएगा 5/6R। सो फाइनल आंसर R इक्वल्स टू 6/5। दिस इज R इक्विवेलेंस। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने मिरर सिमेट्री यूज़ करी, मिरर सिमेट्री से डायग्राम इस तरह से कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसको और सॉल्व किया तो ये डायग्राम, देन ये यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया कि दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फाइनल इसका आंसर आ गया। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो मिरर सिमेट्री है ना, उसमें अगर मिरर सिमेट्री है तो करंट का फ्लो उधर वाली ब्रांच में जो हो रहा है, सेम करंट आपको उसकी इमेज वाली ब्रांच में मिलनी चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ तभी आपको पता लगेगा कि ये दोनों डिसकनेक्टेड हैं। यहाँ तो कनेक्टेड हैं, लेकिन चूँकि करंट, ये वाली करंट ऊपर नहीं जाएगी, सिमेट्री है ना यहाँ पे, इसलिए आपने इसको अलग कर दिया। अब करंट ऊपर नहीं जा रही है, तो क्लियर है कि यहाँ से ये सेम इसके सिमेट्री था तो इसमें यही करंट आएगी। ऊपर वाली ब्रांच में I2 करंट है तो इसके सिमेट्री है, इसमें I2 करंट आएगी, और ये दोनों इसके सिमेट्री हैं। तो जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ होनी चाहिए, जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ होनी चाहिए, राइट। और उसके बिहाफ पे आप ये क्लियर कर लेंगे कि ये दोनों सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, ये डायग्राम आ जाएगा। फिर ये दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में R हो जाएगा। अब 1 2 और 3 ये तीनों R सीरीज़ में हो गए, ये सीरीज़ में कर दिया। नीचे वाले दोनों सीरीज़ में, फिर सीरीज़ का कंबाइंड किया, ये हो गया, इन दोनों को कंबाइंड किया, ये हो गया। तो इस तरीके से जो है मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, ये दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसमें लगभग सारे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ इसमें और न्यूमेरिकल्स ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।